Good morning, friends. Welcome to my fifth lecture on business mathematics. In our previous classes, we were discussing regarding average. We have told that I have told that average means a single figure which represents the entire series. It's a figure which represents an entire series of data. Next, we have discussed different types of average. We have discussed average is of three types: mean, median, and mode. Next, we have discussed the regarding mean and particularly the arithmetic mean. I have discussed that arithmetic mean can be calculated in individual series, discrete series, and continuous series. And we have discussed different formula for calculation of arithmetic mean in different series by applying three different methods. What are the methods we have discussed? The methods are direct method, shortcut method, and step deviation method. Now, in today's class, I will recapitulate those formulas in 1 to 2 minutes. Then we will solve some complex problems on business mathematics which may come in your examination. Okay. So first let me share my slides with you. Then we will discuss the complex problem. Okay. Okay, friends. So we are discussing regarding measures of central tendency, and in measures of central tendency, particularly we are discussing regarding arithmetic mean. We are discussing regarding arithmetic mean. I have discussed arithmetic mean can be calculated in three different series: individual series, discrete series, and continuous series. And by applying three different methods: direct method, shortcut method, and step deviation method. The different formulas we have discussed in individual series. By direct method, formula is mean is equal to summation x by n. What do you mean by x? X means variables. Next, in shortcut method, the formula is mean is equal to a plus summation d by n, where d means x minus assume mean. I have told that shortcut method is also known as d method or assume mean method. Next, step deviation method. In step deviation method, mean is calculated with the help of the following formula. The formula is mean is equal to a plus summation d dash by n into I. What is d dash? D dash means d divided by I. What is I? I is the common figure from d. We have discussed this. Next, we are discussing regarding discrete series. What is the difference between individual series and discrete series? In case of individual series, there is no frequency. Items are given individually. But in case of discrete series, there are frequencies. So what is the formula in direct method? The same formula. In individual series, it was summation x. But in this case, only one thing will be added, that is summation fx by n. Next, shortcut method. Discrete series, the formula is mean is equal to a plus summation fd by n. What is d? D means deviation. Deviations means x minus a. What is a? A means assume mean. We have discussed. Next, in step deviation method, mean is equal to a plus summation fd dash by n into I. What is d? D is equal to deviation. And what is d dash? D dash is equal to d divided by I. I is the common figure from d. We have discussed this. Next, we have discussed regarding continuous series. In case of continuous series, the variables are given in class interval form. What is class interval? Class interval means 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, like this form. In this form, if variables are given, then first we have to convert the variables into mid values. What is mid value? Mid value is lower value plus upper value by 2. This is a mid value. Once mid value is computed, we will apply the formula and find out the mean. What is the direct method formula? Mean is equal to summation f m into a by n. What is m? M means mid values. Next, in case of shortcut method, it is mean is equal to a plus summation f d by n. Now in this case, you know that in the discrete series d means x minus a, but in continuous series d means x minus m. What is m? M means mid values. So यहाँ पर deviation निकाला जाता है mid values से. Next, step deviation method, mean is equal to a plus summation f d dash by n into I. Okay. If you have not recorded this, I request you
kindly pause the video and record, take a note of this. Okay. Now, once all these formulas are over, once you understand all these formula, we will go for certain complex problem on arithmetic mean. These complex problems generally comes in the examination. Okay, the problems shall be solved by applying these formulas. So we will discuss certain complex problems on arithmetic mean. Okay. Let me first share my PowerPoint with you. We will discuss one by one what are the problems. Okay. Okay, friends. First, we will start with example 1. Okay. Example 1 is regarding open-ended series. We have discussed what is an open-ended series. An open-ended series is a series where, in case of open-ended series, the minimum value and the maximum value is not known. In case of, please see in this example, the minimum value and maximum value is not known. First, minimum value, the series starts with below 30. It means 30 से नीचे, 30 से कितना नीचे हमको पता नहीं है. मैक्सिमम दिया हुआ है 70 से एबव, कितना एबव हमको पता नहीं है. तो ओपन एंडेड सीरीज क्या है? ओपन एंडेड सीरीज इज ए सीरीज where minimum value and maximum value is not known. In case of open-ended series, what we have to do? We have to assume the minimum value and maximum value and solve the problem. And the assumption must be based upon certain common principles. What are the principles? You have to apply some sort of common sense and you will assume what is the minimum and what is the maximum. सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे व्हाट इज एन ओपन एंडेड सीरीज. ओपन एंडेड सीरीज क्या है लिखेंगे, फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. व्हाट इज एन ओपन एंडेड सीरीज? फर्स्ट लिखो व्हाट इज एन ओपन एंडेड सीरीज. ओपन एंडेड सीरीज, पॉइंट नंबर 1, ओपन एंडेड सीरीज is a series where minimum value and maximum value of the variable is not known. What is variable? Variable are those things which varies, which can be measured. In the example, you see what is variable. Variables is the marks. The marks is the variable. So marks does changes. Therefore, please see. In this case, the minimum value of the mark and the maximum value of the mark is not known. मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये हमको पता नहीं है. ओके, सो ओपन एंडेड सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट नोन. सेकंड पॉइंट, वी हैव टू assume the minimum value and maximum value and maximum value. मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा. एक बार हमको एज्यूम करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस. कुछ कॉमन सेंस डालकर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस. सो ये क्वेश्चन अभी हम देखेंगे. ओपन एंडेड सीरीज में हम कैसे मीन निकाल सकते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है
मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। बेटा मार्क्स इज ए वेरिएबल बिकॉज मार्क्स चेंजेस, देयरफॉर द वेरिएबल्स आर डिनोटेड एज एक्स। सो क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी, कितना लोग रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिनोटेड एज एफ। तो हमको क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, लेकिन एक्स कैसा दिया हुआ है पहले मिनिमम पता नहीं है, लेकिन हम देखेंगे बिलो 30 लिखा हुआ है, 30 to 40, इन केस ऑफ 30 to 40 व्हाट इज द गैप, गैप कितना है रे बेटा, गैप है 10। अभी 40 to 50 गैप कितना है 10। नाउ 50 to 60 गैप कितना है 10। 60 to 70 गैप कितना है 10। तो गैप का एक पैटर्न तुमको नजर आ रहा है। व्हाट इज द पैटर्न, पैटर्न गैप 10-10 का आता है। अगर 10-10 का आता है तो नीचे में भी गैप रहेगा कितना 10, और ऊपर में भी गैप रहेगा कितना 10। तो यहां पर गैप रहेगा 10 और यहां पर गैप रहेगा 10, हमको पता चल गया। ओके, ये किसको समझ में नहीं आया, यहाँ पर 10 क्यों गैप रहेगा, यहाँ पर 10 क्यों गैप रहेगा, क्योंकि हर जगह पर कितना गैप है 10-10 का गैप है। अगर 10-10 का हर जगह पर गैप है, नीचे में भी रहेगा 10 का गैप, ऊपर में भी रहेगा 10 का गैप। तो अभी ये इसमें 10 का गैप रहेगा, बिलो 30 कहां से शुरू हो जाएगा, 10 का गैप रहेगा तो 20 to 30 ये हो जाएगा। Am I clear? Why 20 to 30 will be there? Because there will be a gap of 10. यहाँ पर कितना है 70 and above, इसमें भी 10 गैप रहेगा, तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा 70 to 80। बेटा किसको समझ में नहीं आया, बेटा समझ में आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन हमको मिल गया, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। x वैल्यू इज नोन, f वैल्यू इज नोन, एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एनी मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं पहले डायरेक्ट मेथड में इसको निकाल देता हूं। एक्स वैल्यू गिवन, एफ वैल्यू गिवन। व्हाट इज एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू कितना है, एक्स को क्या बोलते हैं मार्क्स, एफ को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज एक्स, एक्स कितना है, एक्स है फर्स्ट 20 से 30। बेटा 20 से 30 हम निकाल ले अभी। नेक्स्ट वन इज 30 to 40। ओके, नेक्स्ट वन इज 40 to 50। Next one is 50 to 60. Next one is 60 to 70. Next one is 70 to 80. ये दोनों हम अज्यूम किए, फर्स्ट वाला लास्ट वाला। और f कितना है, व्हाट इज f, f है इसका 20 से 30 का f है 3, इसका f कितना है, इसका f है 2, इसका f कितना है 3, इसका f कितना है 2, इसका f कितना है 4, 60 से 70 का 4, नेक्स्ट वाला का f कितना है 6। और यहां तक समझ में आ रहा है। नाउ वी नो दैट n इज इक्वल टू समेशन f, तो यहां पर n निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू समेशन f। कितना आता है n, n निकाल लो, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 से 14, 14 26, तो आपका n निकल गया 20। एक बार n निकल गया 20, अभी हम क्या करेंगे, ये कौन सा सीरीज है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अभी हमको मिड वैल्यूज निकालना है। मिड वैल्यूज मींस मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स कैसे निकलता है, l प्लस u बाई 2। व्हाट इज l प्लस u, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फर्स्ट केस में लोअर लिमिट कितना है 20, अपर लिमिट कितना है 30। सो 20 प्लस 30 बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2 25। सेकेंड केस कितना होगा 30 प्लस 40 बाई 2, 30 प्लस 40 बाई 2 कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट वाला 40 प्लस 50 बाई 2 45। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 50 प्लस 60 बाई 2 55। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 60 प्लस 70 बाई 2 65। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 70 प्लस 80 बाई 2 75। बेटा f निकल गया, m निकल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू समेशन f m बाई n। ये सब फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर्मूला को आपको मैं जो फॉर्मूला का आज बताया था टोटली आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम बाई एन। तो एफ आपको मिल गया, एम मिल गया, अभी एफ एम निकालेंगे। कैसे एफ एम निकालेंगे, एफ को एम में मल्टीप्लाई कर देंगे।
व्हाट इज एफ एम, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एफ है 3, ये है एन है, एम है 25, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 कितना आता है बेटा? 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 आ गया आपका 75, 2 इंटू 35 70, नेक्स्ट वन इज 45, इसको करेंगे 45 इंटू 3 कितना आता है 135, नेक्स्ट आ गया आपका 50 टू 60, आ गया कितना 55 इंटू 2 110, नेक्स्ट आ गया 65 इंटू 4, 60 इंटू 4 कितना आता है 60 इंटू 4 240, 5 इंटू 4 20 280, नेक्स्ट 75 इंटू 6, now what is the value of 75 into 6, इसको हम निकालेंगे 75 into 6, 75 into 6 कितना आता है बेटा 75 into 6, 5 जा 30, 0 6 5 जा 3, 7 6 42, 3 450. Now kindly add all these figures and find out summation FM. समेशन एफएम निकालो, ये सारा फिगर्स को क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा, एक एक का ऐड करो और निकालो कितना वैल्यू आता है. ओके, नाउ प्लीज सी, फर्स्ट लेट मी फर्स्ट ओपन माय कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर्स देखकर आपको ये सब फिगर आपको पता चल जाएगा कितना आता है फर्स्ट केस में. ओके फ्रेंड्स, कितना आता है 75, फर्स्ट वन 70 प्लस 135 प्लस 1110 प्लस 2, दिस इज हाउ मच 260 और 280 कितना है 65 into 4, there is a this is 260. Okay, there is a mistake here. Okay, this is equal to 260. This is 260. Okay, now last one is 450. So what is summation FM? Summation FM is equal to 1100, 1100. Okay, now what is the value of mean? Mean is equal to summation FM by n. बेटा समेशन एफएम कितना आया, समेशन एफएम आया आपका क्वेश्चन में 1100. ओके, डिवाइड बाय एन, एन कितना है, एन है 20, 1100 बाय 20 आपका वैल्यू कितना आता है, इसको कैंसिल कर दो, 110 by 2, 110 by 2 दैट इज इक्वल टू 55. तो आपका आ गया कितना 55. सो द वैल्यू इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज कैसे हम निकालते हैं मीन हम लोग देख लिए, वैल्यू कितना आया 55. ओके, सो क्या किए, एक्स दिया था, एफ दिया था, एम निकाले, फिर एफ एम निकाले. फर्स्ट 75 आया, 3 into 25 75, नेक्स्ट 2 into 35 70, 3 into 45 135, नेक्स्ट 2 into 55 110, नेक्स्ट 4 into 65 260, 260, नेक्स्ट आया आपका कितना 4 into 75 450, टोटल मिला दिया कितना हुआ 1100. 1100 को समेशन एफएम, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफएम डिवाइड बाय एन दैट इज इक्वल टू 1100 बाय 20, कितना आया वैल्यू 55. So this is how mean calculated under open-ended series. With this we discuss example number 1. Now next we will go to example number 2.
Okay, friends. Example number 2. Insert. Okay. Example number 2. Okay. Please see. What is second example? Example number 2 is also regarding open-ended series. क्या दिया हुआ है example number 2 में? Marks दिया हुआ है, number of students दिया हुआ है. Now what is the variable? Variable which changes? यहाँ पर क्या change हो रहा है? Marks change हो रहा है. तो marks is x, number of students क्या है? Frequency है, कितना students रखे हैं, इसको बोलते हैं f. तो आपको क्वेश्चन में x दिया हुआ है, f दिया हुआ है. तो x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, क्या करना है अभी? अभी हमको देखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ प्लीज सी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, थोड़ा गैप देखो. व्हाट इज गैप? गैप कितना है? गैप थोड़ा एनालिसिस करेंगे. अच्छा, 10 से 30 यहाँ पर गैप कितना है? 20. ओके, 30 से 60 यहाँ पर गैप कितना है? 40. 30 से 60 के बीच 30. ओके, 60 से 100 कितना गैप है? 60 से 100 के बीच गैप है 40. अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है. तो फास्ट में कितना होगा और लास्ट में कितना होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर पता चल जाएगा. फास्ट में आपको पता हो जाएगा, यहाँ पर 40, 30, 20, 10 10 कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10. इसको समझ में नहीं आया? ये 10 कहां पर गैप होगा? अगर अच्छा, ये हो गया 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए? यहाँ पर गैप हो जाएगा 50. ये किसको समझ में नहीं आ रहा है? ये दोनों इंपोर्टेंट है. तो यहाँ पर 10 गैप रहेगा, तो शुरू कहां से होगा? ये वाला शुरू होगा 0 to 10, 10 गैप है. अच्छा, यहाँ पर 50 गैप होगा, तो ये वाला हो जाएगा 100 से 150. कोई डाउट है क्या? तो अभी अगर ये समझ गए आप, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. अभी तो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. एक्स वैल्यू हमको पता चल गया, एफ वैल्यू पता चल गया, एक्स लिखेंगे और एफ लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अच्छा, व्हाट इज एक्स वैल्यू? एक्स कितना है? 0 to 10. सेकेंड वन कितना है? 0 to 10. नेक्स्ट वन 10 से 30. ओके, नेक्स्ट वन 30 से 60. नेक्स्ट वन 60 से 100. ओके, नेक्स्ट वन 100 से 150. अभी कैलकुलेट किए 100 से 150. एफ कितना है? अभी एफ देखेंगे कितना. फर्स्ट केस में एफ कितना है? 3 है. सेकेंड केस में 10 से 30 में कितना है? 2 है. थर्ड केस में कितना है? 6 है. इसमें कितना है? 4 है. इसमें कितना है? 5 है. अच्छा, सो कितना आता है टोटल? एन कितना आता है? तो अभी पहले देखेंगे एन. एन इजिकल टू मिला देंगे, एन इजिकल टू समेशन एफ. एन इजिकल टू समेशन एफ कितना आता है? मिलाओ इसको. 3 2 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 5 20. बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? एक्स दे दिया था, एफ दे दिया था. अभी हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यूज निकालेंगे. व्हाट इज मिड वैल्यूज? मिड वैल्यूज इक्वल टू एल प्लस यू बाई 2. मैं बहुत बार पढ़ा दिया हूं. मिड वैल्यूज एल प्लस यू बाई 2. एल मतलब लोअर लिमिट. फर्स्ट का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है. 0 प्लस 10 बाई 2. 0 प्लस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5. अच्छा, सेकेंड केस लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 30 है. 10 प्लस 30 बाई 2, 10 प्लस 30 बाई 2, 40 बाई 2. 10 प्लस 30 कितना हो रहा है? 10 प्लस 30 40, 40 बाई 2 कितना हो रहा है? 20. नेक्स्ट 30 60 है. 30 और 60 है. 30 और 60 प्लस 30 प्लस 60 कितना होता है? 90. 90 बाई 2 कितना होता है? 45.
नेक्स्ट 60 प्लस 100, 60 प्लस 100 कितना होता है? 60 प्लस 100 बेटा कितना हो रहा है? 60 प्लस 100 160, 160 बाई 2 80। नेक्स्ट 100 प्लस 150 250, 250 बाई 2 125। बेटा ए में आ गया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला डालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो डायरेक्ट एफएम निकाल देते हैं। तो हमको पता है फॉर्मूला डालेंगे, मीन इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू समेशन एफएम बाई एन। तो समेशन एफएम पहले निकालेंगे और एन निकालेंगे। तो फर्स्ट एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एफ को एम में मल्टीप्लाई करेंगे, करो एफ एम। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। नेक्स्ट 2 इंटू 20 कितना होता है? 40। नेक्स्ट 6 इंटू 45, 6 इंटू 45 कितना होता है? 270। नेक्स्ट 4 इंटू 80 इंटू 4 320। नेक्स्ट 125 इंटू 5 कितना होता है बेटा? 625। Now we will add all these things. We will get summation FM. What is summation FM? You add all these things. Okay, 5, 5, 10, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 7, 6, 7, 13, 13 to 13 to 15, 15 to 15 to 17, 17. Okay, 17. Okay, 7, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12. So summation FM is equal to 1270. If summation FM is equal to 1270, we will write 1270 divide by n. n कितना है? n है 20. Now 0 0 cancel, 127 by 2, 2 6 ja 12, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, so 1 10, 63.5. This is the value of mean in case of open-ended series. Am I clear? Example 2 over. Okay, how to calculate mean in case of open-ended series? In case of open-ended series, we have to assume the minimum value and the maximum value. Then we will solve the problem. Okay, next we will go to example number 3. Example number 3. Control check. Okay. First, let me bring the problem. Once problem comes, then we will solve it. Okay. Ours it is business mathematics. Please wait. Problem number 3. It's not coming. There is a technical problem. Problem is not coming. Okay. Okay. Problem number 3. We have to include. Okay. Now we will discuss in problem number 3 regarding inclusive series. Now what is inclusive series? First हम बात करेंगे inclusive series क्या है। बेटा inclusive series एक ऐसा series है जहां पर the highest value of a particular class falls in that class, not below class. There are two type of series. One is inclusive series, another is exclusive series. अभी inclusive series क्या है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम ए स्टडी ऑफ पेशेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस वर ऑब्टेन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। पेशेंट का एज दिया हुआ है। बेटा क्या वेरी करता है? एज वेरी करता है, तो एक्स दिया हुआ है,
अच्छा, और क्या दिया हुआ है? और पेशेंट्स का नंबर ऑफ केसेस दिया हुआ है। नंबर ऑफ केसेस मतलब नंबर ऑफ केस दिया हुआ है, हर पेशेंट का कितना केस है। नंबर ऑफ केस इज नोन एज एन, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। एक्स वैल्यूज आर गिवन, एफ वैल्यूज आर गिवन। नाउ व्हाट यू विल डू, प्लीज सी फर्स्ट वन इज 10 to 19, देन 20 to 29। बेटा हम लोग तो इस तरह से देखे थे ना, क्या था हमारा, हम लोग पढ़ रहे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह पढ़े थे, 30 to 40। इसका मतलब इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। बेटा क्यों इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं? इसको एक्सक्लूसिव इसीलिए बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको एक्सक्लूसिव किस लिए बोलते हैं? इसको इसलिए एक्सक्लूसिव बोलते हैं, यहाँ पर 10 जो है, 10 यहाँ पर नहीं आता है, 10 आता है नेक्स्ट वाला सीरीज में। यहाँ पर 20 जो है, 20 ये वाला सीरीज में नहीं आता है, ये इस वाला सीरीज में। अपर वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। 30 जो है, 30 यहाँ पर नहीं आता, ये 30 यहाँ पर आता है। ओके, अपर वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन ये जो सीरीज है, ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज है जहां पर अपर वैल्यू इज इंक्लूडेड। जैसे 10 से 19, तो इसका 10 से 19 में 19 कहां पर है? ऊपर में है, नीचे में नहीं है। क्योंकि नीचे में 20 से 29, 29 कहां पर है? यहाँ पर है। नीचे वाला 30 to 39 में नहीं है। 39 कहां पर है? ये वाला में, उसके नीचे वाले में नहीं है। 49 ये वाला में, उसके नीचे वाले में नहीं है। ये 59 ऊपर में है, उसके नीचे वाले में नहीं है। आप देखेंगे अगर ये वाला सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको समझाता हूं। ये है 10, ये है 19, फिर गैप आ गया, फिर आ गया 20, फिर आ गया कितना? 29, फिर गैप आ गया, कितना आ गया? 30, 39। बेटा समझ में आ रहा है? ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा सीरीज है जहां पर आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बीच बीच में क्या है? गैप है। अगर इस टाइप का सीरीज आपको देता है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। बेटा लेकिन सबसे अच्छा मजे की चीज क्या है? इंक्लूसिव सीरीज हो, एक्सक्लूसिव सीरीज हो, मीन निकालने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में हम मीन निकालते हैं, इंक्लूसिव सीरीज में भी उसी हिसाब से मीन निकालेंगे। मीन कैलकुलेशन में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कुछ नहीं है। फिर मीडियन मोड कैलकुलेशन में थोड़ा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का चक्कर है, लेकिन मीन कैलकुलेशन में इंक्लूसिव सीरीज का कोई चक्कर नहीं है। तो पहले लिखेंगे व्हाट इज एन इंक्लूसिव सीरीज। लिखो इंक्लूसिव सीरीज, फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूसिव सीरीज is a series in which the upper value of a class interval falls within that class, falls within that class. What is falls within that class? मतलब क्या है? अपर वैल्यू ऑफ ए सीरीज। अपर वैल्यू ऑफ ए सीरीज मतलब यहाँ पर 10 से 19 के बीच में सपोज देखो, अपर वैल्यू क्या है? 19। 19 कहां पर है? उसी में। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन नो स्पेशल ट्रीटमेंट is required for inclusive series. It is treated in the same way as exclusive series. जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रीटमेंट किए थे, जस्ट उसी की तरह हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे।
कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, फिर इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। बेटा एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 10 से 19। ओके, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, 20 से 29। ओके, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 30 से 39। ओके, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, 40 से 49। ओके, नेक्स्ट क्या कितना दिया हुआ है, 50 से 59। एक्स वैल्यू इज गिवन। वंस एक्स वैल्यू इज गिवन, फिर इन एफ वैल्यू इज गिवन। एफ वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, 3, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5। तो व्हाट इज एन, एन कितना है, एन इज द टोटल ऑफ एफ। एन इज इक्वल टू 5 4 9 6 15, 15 3 18 2 20। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट मिड वैल्यूज। व्हाट इज मिड वैल्यूज, कैलकुलेट करो मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज क्या करेंगे, एल प्लस यू बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ पर लोअर लिमिट 10 है, यहाँ पर अपर लिमिट 19 है। 10 प्लस 19 बाई 2 कितना होता है, 14.5। नेक्स्ट 20 प्लस 29, नेक्स्ट वाला में यहाँ पर 20 है 29 है, 20 प्लस 29 बाई 2 कितना होता है, 26.5। नेक्स्ट 30 प्लस 39, 30 प्लस 39 बाई 2 कितना आएगा, 34.5। नेक्स्ट 40 प्लस 49 बाई 2 कितना आएगा, 44.5। नेक्स्ट 50 प्लस 59 कितना हो गया, 54.5। बेटा जब भी ये 0.5 वाला चक्कर आए तो डायरेक्ट मेथड लगाओगे, कैलकुलेशन करते करते जान निकल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, आइदर स्टेप डेविएशन डालो या नहीं तो कौन सा स्टेप डेविएशन कब डालोगे, जब कॉमन ले सकते हैं तो डी वाला मेथड लगाना पड़ेगा, आइदर डी वाला मेथड या डी डैश वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अज्यूम मीन वाला मेथड लगाओ या स्टेप डेविएशन वाला मेथड लगाओ, शॉर्टकट लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ। तो आपको अभी हमको सपोज हम स्टेप डेविएशन निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। नाउ व्हाट इज ए, ए मीन्स अज्यूम मीन। तो अभी इसमें से कौन से मिड वैल्यूज में से एक को अज्यूम मीन लेना पड़ेगा, इनमें से एक को अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। सपोज अज्यूम मीन ले लेते हैं किसको, 34.5 को, तो ऊपर में लिखेंगे अज्यूम मीन इज इक्वल टू 34.5। नाउ डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, निकालो डी। डी कितना आएगा फर्स्ट केस में, अच्छा 14.5 माइनस 24.5 कितना आएगा, 14.5 माइनस 24.5 34.5 कितना आएगा, -20। नेक्स्ट केस में कितना आएगा, -10। 24.5 माइनस 34.5 कितना आएगा, -10। नेक्स्ट 34.5 माइनस 34.5 0। नेक्स्ट आएगा 44.5 माइनस 34.5 कितना आएगा, 44 माइनस 34.5 10। नेक्स्ट आएगा 54.5 माइनस 34.5 कितना आएगा, 20। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ कॉमन जा सकता है। कितना कॉमन जा सकता है, 10 कॉमन जा सकता है, तो कॉमन जाएगा 10, तो आई विल बी 10। सो वी विल कैलकुलेट डी डैश, दैट इज इक्वल टू डी बाई आई। डी बाई आई निकालो, -20 बाई 10 -2, यहाँ पर -10 बाई 10 -1, 0 बाई 10 0, 10 बाई 10 1, 20 बाई 10 2। बेटा समझ में आ रहा है क्या, तो एक्स निकल गया, एफ निकल गया, एम निकल गया, डी निकल गया, आई और डी डैश निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में चाहिए आपको एफ डी डैश, तो एफ यहाँ पर दिया हुआ है, डी डैश यहाँ पर है, तो निकाल दो एफ डी डैश, निकालो एफ इंटू डी डैश। बेटा फर्स्ट केस में एफ कितना है, 2 है, डी डैश कितना है, -2 है, 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4। सेकेंड केस में डी एफ कितना है, 3 है, डी डैश कितना है, -1 है, तो 3 इंटू -1 -3। अच्छा थर्ड केस में कितना, 6 है और ये 0 है, समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10।
Now, can we calculate summation f d dash? Yes, we can calculate summation f d dash. कितना आता है summation f d dash? 10 4 14, 14 minus 4 10, 10 minus 10 7. Summation f d dash is equal to 7. Now we will apply the formula and find out the mean. What is the formula? Formula mean is equal to a plus summation f d dash by n into I. Now what is a? A means assume mean. Assume mean कितना है आपका? Assume mean है 34.5. Please see here. Assume mean is there. 34.5. 34.5 plus summation f d dash. Summation f d dash कितना है बेटा? Summation f d dash calculate करेंगे here 7. तो 7 by n. n कितना है बेटा? n है यहाँ पर 20. यहाँ पर देखो 20. n इज इक्वल टू 20 इंटू आई. आई क्या है? कॉमन फिगर. कॉमन फिगर यहाँ पर लिए हैं. आई. आई कितना है? 10. आई है 10. तो यहाँ पर 0 0 कैंसल हो गया. तो 7/2 दैट इज इक्वल टू 34.5 प्लस कितना आता है? 7/2 3.5. आंसर कितना आएगा? 34.5 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 38. तो आवर आंसर इज 38. 38 आपका आंसर है. ओके, दिस इज आवर आंसर. बेटा किसको समझ में नहीं आया? इंक्लूसिव सीरीज क्या है? इंक्लूसिव सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पर अपर लिमिट उसी लिमिट में इंक्लूड होता है. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इंक्लूसिव सीरीज के लिए हमको नहीं चाहिए, नहीं करना है. ओके, इंक्लूसिव सीरीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नेक्स्ट अभी हम एक सेपरेट एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 जहां पर हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. मैं पहले पढ़ाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. अभी और एक बार करेंगे उसको. तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4. बेटा ये समझ में आ रहा है तो मैं इसको मिटाता हूं. ओके, इंसर्ट करेंगे प्रॉब्लम. इंतजार करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. मैं फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है. जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है, वेरिएबल देगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देगा. मैं बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज की फॉर्म में होता है. तो अभी हम बात करेंगे लेस देन और मोर देन सीरीज या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. पहले देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है, फिर लिखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 लिखो. फर्स्ट पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. क्यूमुलेटिव frequency distribution series may be in less than form or more than form. लेस देन को भी बोलते हैं बिलो फॉर्म, या नहीं तो कौन सा फॉर्म? मोर देन को बोलते हैं एबव फॉर्म. आपको क्वेश्चन में बिलो या एबव फॉर्म में क्वेश्चन देगा. तो यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपको एक्स देता है और सी एफ देता है. क्या देता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है. लेकिन इसमें से आपको एक्स और एफ निकालना है. तो ये गिवन होता है एक्स और सी एफ. इसका मतलब जब भी आप क्वेश्चन में एक हर
जगह पर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन इस तरह का देखते हैं, या हर जगह पर मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन देखते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, आंख बंद करके यहाँ पर एफ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अभी हमको क्या करना है, ये एक्स दिया हुआ है और ये सी एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए एक्स और एफ चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एक्स और सी एफ, एक्स सी एफ दिया हुआ है, हमको ये सी एफ से क्या निकालना है, एफ निकालना है। ओके, थोड़ा ये क्वेश्चन को समझेंगे, एक बार समझ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 10, कितना स्टूडेंट रखे हैं, मार्क दिया हुआ है। अगर ये लाइन है, ये लाइन को पहले समझ लो, तो लाइन समझ में आ जाएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज दिस इज ए लाइन, ओके, सो दिस इज 0, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50. Okay, this is the line. Okay, 50 is the maximum value given in the question. Maximum value question में दिया हुआ है 50. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 10, कितने रखे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिक्योर लेस देन से 5, तो लेस देन 10 मतलब 10 से कम, 10 से कम मतलब 10 से पीछे, 10 से पीछे कितने लोग रखे हैं, 5 स्टूडेंट्स रखे हैं। तो मैं बोल सकता हूं एक्स में 0 to 10 के बीच में कितना स्टूडेंट्स रखे हैं, 5 स्टूडेंट्स रखे हैं। बेटा मैं एफ निकाल रहा हूं एक एक बार में, 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स रखे हैं, क्योंकि लेस देन 10, 10 से नीचे तो कुछ नहीं, 0 है, तो 5 स्टूडेंट्स रखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेस देन 20, कितना स्टूडेंट्स रखे हैं, 9 नंबर, नो, लेस देन 20 मतलब 20 से लेस कितना रखे हैं, 20 से लेस रखे हैं, 20 से लेस मतलब ये, तो 20 से लेस रखे हैं 9। बेटा थोड़ा देखो अभी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां से 0 से 10, 0 से 10 यहां से यहां तक 5 है, और यहां से यहां तक 9 है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो 10 से 20 के बीच में कितना लोग रखे हैं, 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। कोई डाउट है क्या, बेटा समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये 5 4 मिलकर तो 9 बनेंगे, यहां तक दिया हुआ है 5, यहां से यहां तक दिया हुआ है 5, और यहां से यहां तक दिया हुआ है 9, तो ये बीच वाला कितना रहेगा, 4, तो मेरे को मिल गया 10 से 20 कितने हैं, 4। ठीक है, तो अभी थर्ड देखेंगे। बेटा थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में देखो, थर्ड में लिखा हुआ है लेस देन 30 12, 30 से कम कितना है, 12 है। बेटा 30 से कम मतलब ये आ जाएगा, ओके, यहां तक 12। थोड़ा देखो ये लाइन को, ये लाइन को, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या बोलता है, 30 से कम, 30 से कम कितना है, 12 है, और ये वाला लाइन बोलता है 20 से कम, 20 से कम कितना है, 9 है, तो इन दोनों के बीच में कितना है, 12 - 9, 12 - 9, तो ये वाला बीच में कितना है, 3 है, 3 कहां से आया, 12 - 9, तो ये हो गया थर्ड वाला, मेरे को पता चल गया 0 to 10 5 है, 10 से 20 4 है, फिर नेक्स्ट वाला आ गया 20 से 30 कितने हैं, 20 से 30 हो गया मेरा 3 है। बेटा समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेस देन 40 17, 40 से कम, 30 से कम तो 12 है, लेकिन 40 से कम कितने हैं, 40 से कम क्वेश्चन में दे रहा है 17 है, तो 30 से कम 12 है, 40 से कम 17 है, और 30 से 40 के बीच में 17 और 12 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 17 और 12 के बीच में गैप 5 है, तो 30 से 40 के बीच में 5 है, तो मेरे को पता चल गया, यहां पर लिखेंगे 30 से 40 5। बेटा नेक्स्ट
क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 50-20, 50 से कम। बेटा 50 से कम कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 से कम बोल रहा है 20 है। ओके, 50 से कम 20 है, तो 50 से कम मतलब ये वाला रहेगा। ओके, 50 से कम दे रहा है 20। थोड़ा देखो, 40 से कम ये है 17, 50 से कम है 20, तो 40 से 50 के बीच में 20 और 17 के बीच का गैप रहेगा कितना? 20 और 17 का गैप 3, तो 40 से 50 में आ गया है 3। बेटा हमको मिल गया अभी, अगर डाटा मिल गया, एक्स मिल गया, एफ मिल गया, हमको मीन निकालना है, बहुत इजी तरह से मीन निकाल सकते हैं। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, अभी पहले क्या निकालेंगे? मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकलता है? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाई एल प्लस यू बाई 2। तो निकाल देते हैं पहले मिड वैल्यू। 0 to 10, 0 plus 10 by 2 that is equal to 5, 10 plus 20 by 2 that is equal to 15, थर्ड में हो गया 20 plus 30 by 2 that is equal to 25, नेक्स्ट 30 plus 40 by 2 that is equal to 35, next 40 plus 50 by 2 that is equal to 90 by 2 45। एफ आ गया, एम आ गया, हमको डायरेक्ट मेथड डाल देते हैं, मीन निकाल देंगे। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम बाई एन। पहले एन निकाल देते हैं। एन हमेशा देखो, एन कितना होगा? मिला दो, 5 plus 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20। हमेशा याद रखो 20 ये दिया हुआ है, तो एन भी 20 आएगा। लास्ट वाला सीरीज में जितना आता है लेस देन का, वही एन का रहेगा, क्योंकि 50 से कम सब है, तो 50 से कम 20 दिया हुआ है, तो टोटल होगा कितना? 20। अभी एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एफ और एम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि समेशन एफ एम निकलेगा। एफ और एम को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट एफ में 5 है, नेक्स्ट एफ में कितना है बेटा? फर्स्ट केस में 5 है, नेक्स्ट केस में कितना? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना है? 25। सेकेंड 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना है? 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 फर्स्ट 5 इंटू 5 हो गया कितना? 25। 4 इंटू 15 60, नेक्स्ट 3 इंटू 25 75, नेक्स्ट 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 कितना? 35, 5 जा 150, 5 5 जा 25, 175। नेक्स्ट 45 इंटू 3, 40 इंटू 3 120, 5 इंटू 3 15, 135। नाउ यू विल फाइंड आउट समेशन एफ एम। मिला दो इसको, ये सबको मिला दो, वैल्यू कितना आता है? समेशन एफ एम, समेशन एफ एम इज इक्वल टू, मिलाओ कितना आता है? समेशन एफ एम निकालो बेटा। समेशन एफ एम 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 0 0 2 2 2 4, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 3 27, 24 3 27, 2 2 1 3, 3 1 4। समेशन एफ एम आपका आ गया 470। तो अगर समेशन एफ एम 470 है, एन कितना है? एन तो अभी निकाल दिए हैं, एन है 20। नाउ कैन यू फाइंड आउट मीन? मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे, ये वाला फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम बाई एन, 470 बाई एन, 470 बाई एन आप निकाल दीजिए, कितना आता है? 0 0 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 223.5। सो मीन वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड 23.5। बेटा समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म हो गया। अभी लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, वो एग्जाम्पल है मोर देन वाला एग्जाम्पल। लेस देन वाला गया था, अभी मोर देन वाला एग्जाम्पल करेंगे और आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा। लेस देन समझ गया तो मोर देन भी इजीली समझ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, पावर पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 5। लास्ट एग्जाम्पल करेंगे आज के क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 5।
सो दिस इज आवर एग्जांपल। क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, मोर देन या एबव दे सकता है। आप देखिए हर जगह पर क्या लिखा हुआ है, एबव 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 एबव। इसका मतलब ये सब कौन सा है? ये सब एक्स दिया हुआ है। ये कौन सा सीरीज है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ये CF दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये कौन सा वाला सीरीज है? मोर देन वाला सीरीज है। मोर देन या लेस देन आता है तो ये एफ नहीं है, ये CF है। तो इसमें से एक्स और एफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये लाइन ड्रॉ करके निकालेंगे। तो पहले लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ करके एक एक करके निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50। 40 दिया हुआ है तो एबव 40 50, एबव 40 50। तो ये है 0। फर्स्ट क्वेश्चन, एबव 0 20। इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 0 से ज्यादा। बेटा 0 से ज्यादा मतलब कौन है? 0 से लास्ट तक दिया हुआ है। 0 से लास्ट तक दिया हुआ है, कितने हैं? 20 है। ठीक है, फिर दिया हुआ है एबव 10, 0 से ज्यादा 20, एबव 10 10 से लास्ट तक। बेटा 10 से लास्ट तक कितना है? 10 से लास्ट तक 16 है। तो अगर 10 से लास्ट तक 16 है, कैन यू कैलकुलेट 0 से 10 तक कितना होगा? 0 से 10 तक इन दोनों में गैप, इन दोनों में गैप कितना होगा? 20 और 16 में गैप कितना है? 4। तो यहां पर हो गया 4। तो हमको x मिल गया। x कितना है? फर्स्ट x मिल गया 0 to 10। 0 to 10 कितना है? F4। बेटा नेक्स्ट पढ़ो। एबव 10 गया, एबव 20 कितना है? बेटा 10 से ज्यादा कितने हैं? 16 है। 10 से ज्यादा 16 ये वाला लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 से ज्यादा 13 है। ये दोनों लाइन को देखो, 20 से ज्यादा मतलब ये 13 है। देखो यहां पर 10 से ज्यादा 16 है और 20 से ज्यादा 13 है। तो 10 और 20 के बीच में कितने हैं? 10 और 20 के बीच में ये है। तो ये 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 3। तो 10 से 20 के बीच में मेरे को मिल गया 3। बेटा यहां पर और एक बार देखो, 20 से ज्यादा 13 है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 20 से ज्यादा 13 हो गया, 30 से ज्यादा 9 है। 30 से ज्यादा मतलब ये 9 है। 30 से ज्यादा यहां तो यहां तक 9 है। अच्छा 20 से ज्यादा 13 है, 20 से ज्यादा 13 और 30 से ज्यादा 9। इसका मतलब 20 और 30 के बीच में ये वाला कितना है? 13 और 9 के बीच में जितना गैप है, 13 और 9 के बीच में कितना गैप है? 4 गैप है। तो आ गया मेरा 20 to 30 कितना है? 4। बेटा अभी देखो 30 से ज्यादा कितने हैं? 9 है। 30 से ज्यादा ये सब 9 है। फिर दिया हुआ है 40 से ज्यादा 5। तो 20 से ज्यादा 9 है, 30 से ज्यादा 9 है, 40 से ज्यादा 5 है, 40 से ज्यादा 5 है। तो ये 30 से 40 के बीच में कितना है? 9 और 5 के बीच में गैप कितना है? 4। तो ये गया 30 से 40 के बीच में कितना है? 4 है। 30 से 40 के बीच में 4 है। अभी 40 से ज्यादा तो 5 है। 40 से ज्यादा कितना तक? 50 तक। 40 से 50 बेटा कितना है? 5 है। नाउ कैन यू कैलकुलेट n? n कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू टोटल ऑफ f। 4 + 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20। n हो गया 20। अभी x दे दिया है, f दे दिया है। अभी क्या करेंगे? अभी हम मिड वैल्यूज निकालते हैं। व्हाट इज मिड वैल्यू? फर्स्ट 0 + 10/2, 0 + 10/2 कितना आता है बेटा? 0 + 10/2 15, 0 + 10/2। ओके, मिड वैल्यूज निकालो। 0 + 10/2, 0 + 10/2 कितना आता है? 5। 10 + 20 15। नेक्स्ट 20 + 30, 20 + 30 कितना? 50/2 25। नेक्स्ट 30 + 40 70/2 35। नेक्स्ट 40 + 50 45। अभी इसमें से एक एज्यूम मीन मेथड में इसको बनाते हैं। एक एज्यूम मीन ले सकते हैं। एज्यूम मीन लेकर आप इजीली निकाल सकते हैं। सपोज आप एज्यूम मीन ले लिए किसको? एज्यूम मीन ले लिए 25 को। अगर 25 एज्यूम मीन आपका हो गया तो डी निकाल सकते हैं इजीली। आप फॉर्मूला डालेंगे। व्हाट इज द फॉर डी? डी कितना आएगा? डी इज इक्वल टू m - a।
एम है 5, अज्यूम मीन लिए 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, देन 45 माइनस 25 20। अच्छा, ये सब में से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? हाँ, 10 कॉमन जा सकता है। तो कॉमन जो जाता है आई बोलते हैं, आई हो गया 10, फिर डी डैश निकालेंगे, डी डैश इजिकल टू डी डिवाइड बाई आई, ये हो गया -2, ये हो गया -1, 0 बाई 10 हो गया 0, ये 1 बाई 10 हो गया 1, देन 20 बाई 10 हो गया 2। बेटा एफ मिल गया, डी डैश मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट एफ डी डैश। बेटा एफ डी डैश कैसे निकालेंगे? एफ को डी डैश में मल्टीप्लाई करेंगे। एफ है 4, डी डैश से -2, तो हो गया 4 इंटू -2 -8। एफ है 3, डी डैश से -1 -3। देन एफ है 4 और ये है 0 0। नेक्स्ट एफ है 4, ये है 1 4। नेक्स्ट एफ है 5, ये है 2 5 2 10। Now we will find out summation एफ डी डैश। समेशन एफ डी डैश कितना आता है? तो निकालो, 10 4 14, 14 3 गया 11, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो 3। तो 10 4 14, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 8 गया तो 3। नाउ वी विल फाइंड आउट मीन। फॉर्मूला क्या है मीन? ये स्टेप डेविएशन मेथड का मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। ये फॉर्मूला है। व्हाट इज ए? ए मीन्स अज्यूम मीन। यहाँ पर अज्यूम मीन कितना लिए हैं? यहाँ पर अज्यूम मीन यहाँ पर लिए हैं 25। तो 25 प्लस समेशन एफ डी डैश। बेटा समेशन एफ डी डैश अभी यहाँ पर निकाले 3, 3 डिवाइड बाई एन। एन कितना है? एन यहाँ पर निकाले 20, 20 इंटू आई। आई कहाँ पर? आई इज द कॉमन वैल्यू। आई कितना लिए हैं? 10 लिए हैं, तो 10। नाउ इट इज 0 0 कैंसल हो गया, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 3 बाई 2 1.5, दैट इज इक्वल टू 26.5। सो वैल्यू आ गया आपका कितना? 26.5। बेटा समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े? आज के क्लास में हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आया था? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आज हम पढ़े, फास्ट शुरू किए कौन सा सीरीज के बारे में? आज के प्रॉब्लम में फास्ट किए ओपन एंडेड सीरीज में, फिर किए इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, फिर किए लेस देन एंड मोर देन सीरीज। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड ऑफ आवर क्लास टुडे। नेक्स्ट क्लास में और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे अरिथमेटिक में। With this, I conclude my class. So, before winding out, let me tell you my channel. My channel is Commerce Forum. Everything in capital. If you have not subscribed yet, kindly subscribe it so that you will get all recent videos on business mathematics. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you for watching my video. Thank you all.